Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So today in this video we are going to learn something about medieval political philosophy and medieval political thought. So this is the video, short video clip that I have attached for you people, and I have already made a detailed lecture on this, and it includes the main points of medieval philosophy. It talks about the main two philosophers, political philosophers, St. Augustine and Thomas Aquinas. And I have also explained about their views on church and state. And even before this, I have made a detailed lecture of a point, the conflict between the state and the church, and the conciliar movement and the doctrine of two swords. So in this video we are going to be studying about the medieval political philosophy in very detail. So this is basically an extension and a renewed version of medieval political thought. So, we'll be discussing about the St. Augustine views on the state and church. What was his main philosophy of was about. We are going to study about the Aquinas, Thomas Aquinas, and a third philosopher which I have included in this is Marcellus, and we are going to study about him, his views on the state, his view on the church, and what was his main philosophy was about. So we are going to get started, but I just have a small request that before getting started, just please subscribe to my channel and hit the like button, because this video is going to help you a lot in understanding about the medieval political thought. So let's begin. So the topic overview is in a way that we are going to be starting with the Augustine. We are again going to look into the two sword theory just a very little bit, and we are going to interpret the Aquinas views on state and church. We are also going to study about the law of nature as formulated by Aquinas, and then we are going to evaluate about the Marsiglio's philosophy, and then in the last a summary of Augustine and Thomas Aquinas in the end. So let's study about all these things. मिडीवल फ़िलासफ़ी जो है या मिडीवल पॉलिटिकल थॉट, वो हमेशा जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो स्टार्ट हुई थी चर्च और स्टेट या चर्च और किंग के बीच में जो है क्लैश इमर्ज हुआ था, एंड द कॉन्फ्लिक्ट वाज ऑन द टॉपिक के किसके पास ज़्यादा पावर है या हु इज़ द मोस्ट डोमिनेंट पर्सन एंड हु होल्ड्स द सुप्रीम पावर। तो लड़ाई हमेशा इस चीज़ के ऊपर थी, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, एंशियंट पॉलिटिकल थॉट के अंदर सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल और ये वाले लोग थे। देन उसके अंदर जो है लॉजिक, रीज़न या इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ना साइंटिफिक लर्निंग थी, ठीक है, मतलब साइंटिफिक थॉट्स थे, क्योंकि लॉजिक, रीज़न का इस्तेमाल करते वक्त जो है चीज़ों को इंटरप्रेट किया गया, फ़िलासफ़ी प्रेजेंट की गई। लेकिन फिर इसके बाद मिडीवल एरा आ गया और एकदम से जो है लॉजिक और रीज़न जो है वो सप्रेस हो गया एंड रिलीजन ने जो है डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। सो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि जब रिलीजन डोमिनेट करेगा तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट पावर है वो चर्च के पास आएगी, पोप के पास आएगी। तो क्लैश आ गया क्योंकि किंग वाज नॉट रेडी टू गिव अप हिज पावर्स एंड पोजीशन। तो क्लैश इसलिए था। फिर टू सॉर्ट थ्योरी भी आई थी, लेकिन उससे पहले जो क्लैश था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड चर्च, तो इसने डिवाइड कर दिया बहुत ज़्यादा चीज़ों को, फ़िलासफ़र्स को डिवाइड कर दिया। हाफ वर एडवोकेटिंग फॉर द किंग एंड स्टेट के अल्टीमेट पावर उनके पास है, वाइल द अदर हाफ वर एडवोकेटिंग फॉर द पावर ऑफ द चर्च एंड पोप। लेकिन जो मेजर दो फ़िलासफ़र्स जिनको हम पढ़ते हैं, एक है एस.टी. ऑगस्टाइन और दूसरा है थॉमस एक्विनस, क्योंकि ये मिडीवल फ़िलासफ़र के एराज हैं और क्योंकि थियोलॉजी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था और फर्दर इनकी राइटिंग ने फिर आगे जाकर मिडीवल फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा अपना रोल भी प्ले किया, बिकॉज देयर राइटिंग्स वर इन्फ्लुएंस्ड एंड सोली बेस्ड ऑन क्रिश्चियन थियोलॉजी, ठीक है। तो जाहिर है जब राइटिंग इस तरह की होगी तो उसके बाद जो है फ़िलासफ़ी भी फिर दैट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चर्च एंड द पोप। तो लेकिन बाद में जो है एक थर्ड फ़िलासफ़र है एंड ही इज़ मार्सिलियस भी कहते हैं। कुछ जगह में इसके वर्ड्स जो हैं स्पेलिंग्स वो मार्सिग्लियो हैं या कुछ जगह में है मार्सिलियस। सो आई बी टॉकिंग अबाउट मार्सिलियस एंड आई बी प्रोनाउंसिंग दैट। तो मार्सिलियस जो है वो उन्होंने फिर एक मतलब एक कंसिलिएटरी पाथवे शो किया कि लाइक दोनों को जो है अपने अपने डोमेन में काम करना चाहिए।
और ठीक है, मतलब इस तरह होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एस.टी. ऑगस्टाइन की जो राइटिंग्स थी सारी, उसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने एक किताब लिखी थी फेमस, वो सिटी ऑफ गॉड्स थी। और उसमें सही साफ पता चलता है नाम से ही कि चर्च विल हैव द अल्टीमेट एंड सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर ओवर द स्टेट। ठीक है, मतलब सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, सोशल इकोनॉमिक पावर्स जो हैं वो चर्च के पास होने चाहिए। थॉमस एक्विनस की फ़िलॉसफ़ी जब भी हम पढ़ते हैं तो हाँ वी आर एनकाउंटर्ड विद के वो भी जो है बहुत ज़्यादा उसकी राइटिंग्स जो हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थी। सो ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट चर्च इन हिज राइटिंग एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट स्टेट। लेकिन इनका जो मेजर रिकन्सिलिएटरी फ़िलॉसफ़ी है दैट वाज अबाउट के हम जो है अपने रीज़न को इस्तेमाल करेंगे फ़ेथ के ऊपर। ठीक है, मतलब ऐसे बिल्कुल अंधा एतमाद करके रिलीजियस फ़ेथ के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, हम अपना रीज़न इस्तेमाल करेंगे टू इंटरप्रेट आवर फ़ेथ। ठीक है, मतलब ज़ाहिर है कि एक जब आपके पास अपना फ़ेथ होता है, आपके पास अपनी रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं, बट यू यूज़ योर ब्रेन एज़ वेल फॉर दैट, तो इसको स्कॉलास्टिसिज्म भी कहते हैं कि मतलब यूजिंग रीज़न टू इंटरप्रेट फेथ बिलीफ एंड दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसकी फ़िलॉसफ़ी ज़्यादातर इसी पे थी। लेकिन बाद में जाकर क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, जिसके ऊपर पोप की पावर वीक हो गई थी, चर्च के ऊपर भी वीक हो गई थी और स्टेट के ऊपर भी वीक हो गई थी। तो मतलब पोप की एज सच अल्टीमेट पावर नहीं थी, ये एक्विनस का इम्पैक्ट था, उसकी राइटिंग्स का इम्पैक्ट था, जिसके बाद जो है पोप के पास बिल्कुल पावर ख़त्म हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। तो इसीलिए हम इसकी फ़िलॉसफ़ी को दूसरे क्लास में लेके जाते हैं, दूसरे ग्रुप में लेके जाते हैं कि उसने फिर अल्टीमेट पावर जो है उसने कहा कि स्टेट के पास होती है। तो अगर आप इस स्लाइड के अंदर जो है फर्स्ट पॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया बहुत ही डिटेल में विद बैकग्राउंड। तो अगर आप सेकंड पॉइंट को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि पोप क्लेम द मॉरल एंड सेक्युलर पावर्स ओवर बिलीवर्स। अब मॉरल का तो आपको पता है कि रिलीजियस साइड पे एथिक्स ये सब ठीक है, लेकिन सेक्युलर पावर्स जो है वर्ल्डली पावर्स को कहते हैं, जो बेसिकली पॉलिटिकल पावर्स को रेफ़र करता है, इकोनॉमिक पावर्स को रेफ़र करता है, जो कि हमेशा जो है स्टेट के पास होती हैं या रूलर के पास होती हैं, जो स्टेट का हेड होता है। ठीक है, तो दैट वाज इन मिडिवल टाइम्स इट वाज किंग या मोनार्क जो था। तो पोप जो है चर्च का हेड होता है। ठीक है, तो पोप ने जो है कहा कि सारी मॉरल और सेक्युलर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं चर्च के पास होंगी। लेकिन किंग जो है उसने रेजिस्ट किया, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया पापल अथॉरिटी को ओवर द वर्ल्डली मैटर्स। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ दोनों चर्च और स्टेट के बीच में, और इसी तरह पूरा मिडीवल एरा जो है चलता गया। और उसके बाद क्योंकि एक्विनस की राइटिंग का इम्पैक्ट हुआ, मार्सिलियस की राइटिंग का इम्पैक्ट हुआ, और उसकी वजह से जो है फिर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हमारे पास इमर्ज हुआ, जिसके फर्स्ट प्रोपोनेंट मैकियावेली हैं। और उन्होंने पावर पॉलिटिक्स की बात किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव चीज़ों की बात किया है, लिबरल चीज़ों की बात की है, और उसने बिल्कुल कहा है कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का बिल्कुल कोई काम नहीं है। तो ये इन्हीं की वजह थी, एक्विनस की वजह थी कि इसकी राइटिंग्स ने इतना इम्पैक्ट किया और पोप की पावर अल्टीमेटली वीक होती गई। तो जो थिंकर्स हैं मेजर जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑगस्टाइन है। वो कहते हैं कि चर्च के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सिटी ऑफ गॉड्स लिखी थी। देन कमिंग टुवर्ड्स थॉमस एक्विनस, तो उसने कहा कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है स्टेट के पास होनी चाहिए। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स मार्सिलियस, तो उसने ही एडवोकेटेड फॉर अ क्लियर सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट। St. Augustine and his methods, and he was from 4th to 5th century AD. सो इस ऑगस्टाइन जो है ये क्रिश्चियन थियोलॉजियन भी हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र। और ये किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो दैट आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि क्रिश्चियन थियोलॉजी, रिलीजन, ट्रेडिशंस, एजुकेशन, क्रिश्चियन एजुकेशन, न्यू प्लेटोनिक क्रिश्चियनिटी, और ज़्यादातर जितने भी वेस्टर्न और अफ्रीकन ट्रेडिशंस हैं उनसे। और इनकी फ़िलासफ़ी का मेन गोल क्या था, वो यही था कि सिंपल एन्जॉयमेंट रूटेड इन रूरल लाइफ, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी जो है इनकी पसंद करते थे। इनकी किताब का नाम है टू सिटीज़ फ्रॉम सिटी ऑफ गॉड। तो सिटी ऑफ गॉड तो इट इज़ रेफरिंग टू द चर्च, ठीक है, लेकिन टू सिटीज़ जो है वो एक स्टेट हो गया, एक चर्च हो गया। स्टेट के बारे में ये कहते हैं कि वो बहुत इम्परफेक्ट लोग हैं, इम्परफेक्ट चीज़ है और एक इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि
वो बिल्कुल जो है इट एनफोर्सेस ऑर्डर थ्रू लॉज, ठीक है, मतलब इसने स्टेट को जो है रिसेसिव जगह में डाल दिया। और चर्च के बारे में वो कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट एटर्नल एंड अपहोल्ड्स द डिवाइन प्रिंसिपल्स। बोथ चर्च एंड स्टेट आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज विद डिफरेंट वैल्यूज येट दे को एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब ठीक है डिफरेंट तो है लेकिन को एग्जिस्ट भी करते हैं। बट चर्च जो है वो परफेक्ट है, वो बिल्कुल एक एटर्नल है, इट इज़ हैविंग डिवाइन प्रिंसिपल्स, एंड स्टेट रिप्रेजेंट्स द इम्परफेक्ट पीपल। चर्च और स्टेट की कंट्रोवर्सी को पढ़ते हैं और ये स्टार्ट हुई थी बिटवीन 11th सेंचुरी, इट वेंट ऑल द वे टिल द एंड ऑफ द मिडिवल फिलोसफी एंड स्टार्ट ऑफ द न्यू मॉडर्न एरा रेनेसेंस, ठीक है। तो ये जो क्लैश हुआ ये फर्स्ट मेजर चर्च वर्सेस द स्टेट क्लैश था, और जो चर्च का हेड था वो पोप ग्रीगोरी था, एंड जो स्टेट का हेड था, किंग था, एम्परर था, इट वाज हेनरी, ठीक है। तो पावर स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हुई थी थ्रू आउट द मिडिल एजेस, और दो कंपीटिंग थ्योरीज जो आती हैं हमारे पास, एक पापसी की आती है और एक सेक्युलरिस्ट की आती है। जो पापिस्ट थे वो कहते थे कि चर्च के पास सुप्रीम अथॉरिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी रिजाइड्स विद द चर्च, लेकिन जो सेक्युलरिस्ट थे वो स्टेट सुप्रीमेसी और अथॉरिटी के अंदर बिलीव करते थे, और वो कहते थे कि किंग इज़ हैविंग द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड द डिवाइन लॉ जो है वो गॉड से किंग के पास आता है डायरेक्टली। हम इस स्लाइड को इसलिए पढ़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर द पापल सुप्रीमेसी, क्योंकि जो मिडिवल फिलोसफी या मिडिवल एरा जो था उसमें सारा पोप की पावर और सुप्रीमेसी की बात की गई है। और चर्च क्योंकि स्टेट के पास जो स्टेट के लिए वो कहते हैं कि वो जो है बेसिकली रिप्रेसिव पोजीशन पे आ जाता है। तो ऑगस्टाइन ने जो, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ऑगस्टाइन ने जो है चर्च के कॉज को सपोर्ट किया, लेकिन डनिंग एक बंदा है, फिलोसफर है, उसने आर्ग्यूमेंट किया फॉर द पापल सुप्रीमेसी, जो कि कहता है कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर डिग्निटी है और ओवर द सेक्युलर अथॉरिटी, ठीक है, मतलब स्टेट के ऊपर अपर हैंड जो है वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी का है। तो गॉड जो है मतलब ग्रांटेड चर्च द पावर टू इंस्पेक्ट एंड करेक्ट द सेक्युलर रूलर्स। ज़ाहिर है वो यही कहेंगे कि जो गॉड से पावर डिराइव हुई हैं वो डायरेक्ट चर्च के पास हैं, और चर्च के पास पावर है कि वो जो है रूलर्स की, स्टेट की मिस्टेक्स को करेक्ट करे, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करे। तो की proponents for the papal supremacy included the John of Salisbury and Thomas Aquinas, और जो थॉमस एक्विनस को इधर काट दें, इट इज़ एस टी ऑगस्टाइन, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो थॉमस एस टी ऑगस्टाइन की जो राइटिंग्स थी द सिटी ऑफ गॉड, उसने एम्फेसाइज किया कि सिटी ऑफ हेवन और सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो को एग्जिस्ट करता है, लेकिन जाहिर है क्योंकि नाम से पता चल रहा है द सिटी ऑफ गॉड, तो गॉड जो मतलब जो चर्च है, क्योंकि वो इट इज़ रेफरिंग टू द डिवाइन पावर, तो जो डिवाइन अथॉरिटी है वो अल्टीमेटली चर्च के पास है। तो अगर हम यहाँ पर एस टी ऑगस्टाइन की फ़िलॉसफ़ी को एक ओवरऑल समरी देखें तो वो यही कहता है कि सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट है, लेकिन चर्च का जो है वो ज़्यादा अपर हैंड है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स पीस, और स्टेट जो है वो एक नेसेसरी रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन है जस्ट टू मेंटेन ऑर्डर, मतलब वो बिल्कुल एक टिट्यूलर पोजीशन नहीं होती, इस उस तरह की पोजीशन है स्टेट की। और ऑगस्टाइन जो है ही एडवोकेटेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द चर्च एंड स्टेट, क्योंकि वो कहता है स्टेट जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिन, लेकिन स्टिल क्योंकि उसकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं तो ठीक है स्टेट एग्जिस्ट करे और कुछ पावर्स को एक्सरसाइज करे, लेकिन चर्च के पास जो है मेन पावर्स होनी चाहिए। और ऑगस्टाइन ये भी कहता था कि चर्च शुड लीड ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स द एटर्नल लाइफ विद गॉड, ठीक है। तो रिलीजन के साथ आप देख सकते हैं कि कनेक्ट किया हुआ है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को या चीज़ों को। तो फिर हम इससे ये कह सकते हैं कि उसने जो है चर्च को एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी की तरह देखा है अपनी फ़िलासफ़ी में, उसकी फ़िलासफ़ी में रिफ़्लेक्ट होती हैं ये चीज़ें। और ऑगस्टाइन के जो आइडियाज़ थे ऑन द पापल सुप्रीमेसी, इट टॉक्ड अबाउट ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी ऑफ द चर्च एंड इट्स फंक्शनिंग। ये एक समरी आप पढ़ लें ऑफ द टू सॉर्ड थ्योरी, ठीक है। तो पॉप गिलियसिस फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ द टू सॉर्ड, जो कि इक्लास्टिकल अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज बाय द प्रीस्ट, ठीक है, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो, लेकिन सिक्यूलर अथॉरिटी जो है वो किंग के पास होती है, ठीक है। रिलीजियस सारी जो मैटर्स हैं वो प्रीस्ट के पास होते हैं, लेकिन सेक्युलर जो हैं वो किंग के पास होंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिलेसिस जो है क्राइस्ट वॉज बोथ किंग एंड द प्रीस्ट, ठीक है। और ड्यू टू ह्यूमन सिंफुल एंड वीकनेस क्राइस्ट डिवाइडेड द ऑफिसेस बिटवीन द किंग एंड द प्रीस्ट, ठीक है, क्योंकि इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ह्यूमन सिंफुलनेस है, वीकनेस है, तो फिर जो क्राइस्ट है ना, जो मतलब इनका मानना था कि ये लीडर जो है इसने ऑफिसेस को डिवाइड कर दिया कि
मतलब दुनिया को कैसे चलाना है। तो रिलीजियस में और सेक्युलर पावर्स को डिवाइड कर दिया किंग और प्रीस्ट के बीच में। किंग जो है वो वर्ल्डली अफेयर्स को देखेगा, जबकि प्रीस्ट जो है वो स्पिरिचुअल वेलफेयर को देखेगा। ठीक है, तो टू अथॉरिटीज़ जो है ये इंडिपेंडेंट है येट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और किंग जो है उसको चाहिए कि वो रिकग्नाइज करे चर्च की अथॉरिटी को ओवर स्पिरिचुअल, और जो प्रीस्ट है उसको भी चाहिए कि किंग की अथॉरिटी को रिकग्नाइज करे ओवर द सेक्युलर अफेयर्स। ठीक है, तो गिलीसिस जो है ही एडवोकेटेड फॉर कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड चर्च विच हाउएवर अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट अकर। लेकिन फिर आगे जाके जो है मॉडर्न एरा में, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में जो है किंग के ऊपर जो है किंग का जो है डोमिनेंट रोल आ गया था और रिलीजन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। एक्विनस के बारे में पढ़ते हैं। और एक्विनस जो है ही इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मिडिवल फिलोसफर, क्योंकि इसने एक मतलब एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर को पेंट किया ऑफ द मिडिवल पॉलिटिकल थॉट। और उसने जो है डोमिनिकन ऑर्डर को ज्वाइन किया एट 16। ये वो थी इनकी आर्मी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एक्विनस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कॉलस्टिसिज्म, क्योंकि ये 13th सेंचुरी में आए थे। आप अगर ऑगस्टाइन के साथ कंपेयर करें सो ही वाज इन द 4th to 5th सेंचुरी एडी, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम के बाद ही एक्विनस केम एट 13th सेंचुरी। तो जाहिर है थोड़ी सी तो मॉडिफिकेशन हुई होगी उस टाइम तक फ़िलासफ़ी में। तो इन्होंने जो फ़िलासफ़ी प्रेजेंट किया वो बेसिकली स्कॉलस्टिसिज्म पे बेस्ड है, और इसके अंदर ये होता है कि ये दोनों चीज़ों को मिलाकर, मतलब यूजिंग लॉजिक टू इंटरप्रेट रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, मतलब लॉजिक को भी डाला और साथ में इंटरप्रिटेशन डाली रिलीजियस बिलीव्स की। और इनका फिलोसॉफिकल गोल क्या था? टू सपोर्ट फेथ विद रीज़न। ठीक है, स्ट्रेंथन चर्च थ्रू इंटेलेक्ट। लेकिन इट ऑल्सो, इसकी जो ये गोल था, इट एम टू साइलेंस डाउट्स अबाउट चर्च थ्रू द आर्ग्यूमेंट्स। अब की फीचर्स जो इसकी फिलोसफी के थे वो कह रहे थे कि चर्च डोगमा इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। डोगमा यहाँ पर हम डॉक्ट्रिन को कहते हैं या आइडियोलॉजी को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि चर्च का जो डॉक्ट्रिन है वो तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एवरीबॉडी शुड नो दिस। लेकिन डोगमा और रीज़न जो है वो आपस में दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब साथ साथ हैं। डोगमा मतलब रिलीजियस डॉक्ट्रिन, और जो रीज़न है वो साथ साथ हैं। ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। तो अगर हम इनका कोर देखें कि इन्होंने अपनी फ़िलोसॉफ़िकल टीचिंग्स कहाँ से डिराइव की, तो फ़िलासफ़ी ऑफ द एंशिएंट थिंकर्स, मतलब रैशनल एलिमेंट लाए एंशिएंट थिंकर्स का, लॉजिक रीज़न का इस्तेमाल करने के लिए। और थियोलॉजी फ्रॉम द चर्च प्रीस्ट। ठीक है, तो मतलब एस.टी. ऑगस्टाइन के टाइम से जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, चर्च थी, थियोलॉजिकल राइटिंग्स थी, तो दोनों का रिकन्सिलिएटरी पाथ शो किया, डायरेक्शन शो की टुवर्ड्स द पॉलिटिकल थॉट। एक्विनस के व्यूज़ पढ़ते हैं ऑन द स्टेट एंड चर्च। तो थॉमस एक्विनस जो है वो चर्च और स्टेट के ऊपर कहते हैं कि चर्च जो है वो डिवाइन लॉ को इंटरप्रेट करता है, जबकि स्टेट जो है वो ह्यूमन रिलेटेड लॉज, पॉलिटिकल लॉज बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉज को इन्फोर्स करता है। ठीक है, तो चर्च जो है एडवाइज स्टेट ऑन द मॉरल लेगिस्लेशन, मतलब जितने भी रिलीजियस और मॉरल लेगिस्लेशंस हैं वो चर्च जो है एडवाइस कर सकता है स्टेट को। अभी करंट एग्जांपल आप देख लें, जैसे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। ठीक है, तो अगर कोई रिलीजियस मैटर्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो जो वो काउंसिल है ना वो स्टेट को गाइड कर सकती है, उसकी टीचिंग्स को डायरेक्ट कर सकती है कि तुम लोग किस तरह के लॉज बनाओ रिलेटेड टू इस्लामिक टीचिंग्स। ठीक है, तो इस तरह का ये कहते हैं, इन्होंने इस तरह की पावर को, चर्च की पावर को एडवोकेट किया है कि चर्च का भी थोड़ा सा पॉलिटिकल रोल है, लेकिन वो स्टेट को गाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉरल लेगिस्लेशंस। ठीक है, जितनी भी रिलीजियस मैटर्स आएंगे तो चर्च उस पर जो है अपनी एडवाइस दे सकता है। तो एक्विनस जो है उन्होंने रिजॉल्व किया फाइनली कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन द स्टेट एंड चर्च, और वो कहते हैं कि किंग के पास टेम्पोरल पावर है और चर्च के पास जो है स्पिरिचुअल पावर है। तो हम अगर हम एक्विनस का इम्पैक्ट देखें ऑन द लेटर फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थॉट, तो कैथोलिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम जो रिलीजियस लोग होते हैं ना वो होते हैं क्रिश्चियंस। ठीक है, तो कैथोलिक जो है इन्होंने अबेंडन कर दिया ऑफ द आइडिया ऑफ द चर्च के ऑफ कंट्रोलिंग साइंस एंड फिलॉसफी। तो ये एक्विनस की राइटिंग की वजह से ही हुआ कि चर्च के कैथोलिक्स ने जो है उन्होंने
ये छोड़ दिया बस, मतलब ऑफ कंट्रोलिंग साइंस एंड फिलॉसफी उन्होंने कोई, फिर पापल अथॉरिटी जो है ओवर किंग्स वो वीक होना शुरू हो गई, और आगे जाके जो है नेशनलिज्म ने जो है इट रिप्लेस चर्च एज अ डोमिनेंट फोर्स। ठीक है, मतलब क्योंकि एक कंट्री की नेशनलिज्म इतनी स्ट्रांग हो गई थी, जाहिर है देन दे विल एडवोकेट फॉर द किंग्स पावर। ठीक है, तो मतलब चर्च का जो डोमिनेंट फोर्स था वो रिसेसिव बन गया। तो एक्विनस के काम को हम इस तरह देखते हैं कि उसने मॉडर्न सेक्युलर नेशन स्टेट को जो है उसके फाउंडेशंस बनाए, उसका बेसिस जो है प्रोवाइड किया एक्विनस की राइटिंग ने। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑगस्टाइन जो है उसने चर्च की अथॉरिटी को एडवोकेट किया, अल्टीमेट अथॉरिटी को, लेकिन एक्विनस जो है उसने स्टेट की अल्टीमेट पावर को एडवोकेट किया। उसने फाउंडेशन, ही लेट डाउन द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न सेक्युलर नेशन स्टेट। जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट एंड द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो वो इस तरह है कि एक्विनस जो है ही एडवोकेटेड फॉर मैंस पॉलिटिकल नेचर। तो ये सारी वो वाली बातें हैं जो एरिस्टोटल ने की थी, क्योंकि एरिस्टोटल वाज अ वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो जाहिर है क्योंकि एक्विनस जो है वो एरिस्टोटल को फॉलो करता था, सो ही सेड द सेम कि मैन आर या ह्यूमंस आर नेचुरली सोशल एंड पॉलिटिकल बींग्स। ठीक है, और ये भी कि स्टेट जो है वो सोशल एक्सपीरियंसेस से अराइव्ड होता है, नॉट जस्ट द ह्यूमन विल। जबकि हॉब्स ने, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हॉब्स ने कहा था कि ह्यूमन विल होती है ड्रिवन फॉर पावर और इस तरह की चीज़ें, एंड इवेंचुअली दे मेक द कवेनेंट एंड अ स्टेट इज़ फॉर्म्ड, अ सिविल सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारी जो एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी थी वो डायरेक्टली एक्विनस ने इम्पार्ट की, एंड उसने कहा कि मैन जो है वो पॉलिटिकल बींग्स होते हैं, उनकी पॉलिटिकल लाइफ होती है, और स्टेट जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन फेलोशिप होती है। ठीक है, मतलब ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ सोशल एनिमल एंड अ पॉलिटिकल एनिमल एज वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो जो एक्विनस था उसने इसकी, अगर हम जितनी भी फ़िलासफ़ी देखें तो पॉलिटिकल नेचर जो है बहुत ज़्यादा इमिनेंट है इसकी फ़िलासफ़ी के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैन जो है, ह्यूमन जो है सब्जेक्टेड टू डिवाइन लॉ। ठीक है, वो रीज़न का इस्तेमाल करते हैं, वो इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर रिजाइड करते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर और इस तरह की चीज़ों को एक्विनस ने एडवोकेट किया और कहा कि पॉलिटिकल लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमंस टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो पॉलिटिकल लाइफ, बाय पॉलिटिकल लाइफ एक्विनस मेंट दैट, ठीक है, मतलब देखो हम क्या करते हैं कि वी एंजॉय सम फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन्स जो होते हैं वो कुछ फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं जो कि स्टेट उनको प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये पॉलिटिकल लाइफ है। ठीक है, राइट्स को एंजॉय करना, लिबर्टी को एंजॉय करना। लेकिन पॉलिटिकल लाइफ का एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है कि सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और वही ड्यूटीज़ जब आप परफॉर्म करते हैं तो देन यू आर नोन एज अ लीगल सिटीजन। ठीक है, आप राइट्स एंड लिबर्टीज़ enjoy करते हैं, on the other hand you have several political obligation, you have several duties, you have several other obligations, legal obligations that you perform। तो इसी तरह जो है एक स्टेट जो है या एक सोशल फेलोशिप या स्टेट एसोसिएशन जो है वो बनती है। तो these things were very much similar to the Aristotle's philosophy as well। क्योंकि अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको समझाया है कि एक्विनस की जितनी भी फ़िलासफ़ी थी वो एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती थी और मतलब बिल्कुल को रिलेटेड थी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल नेचर ऑफ मैन है तो एक्विनस उसको डिस्क्राइब करता है एज ए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि मैन सोशल नेचर किस तरह की होती है। तो कहता है कि मैन की जो सोशल नेचर है वो जस्टिफाई करती है उसकी एग्जिस्टेंस को। अब इस स्टेटमेंट को मैं आपको इस तरह समझाती हूँ क्योंकि मैन के अंदर जो है सोशल इंस्टिंक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब वो एक के साथ दोस्त बनेगा, दूसरे के साथ, और सोशल एसोसिएशन बनेगी। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर सोशल होने की बहुत ज़्यादा जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक्विनस का ये मानना था कि ह्यूमन इज़ वेरी फ्रेंडली और वो सोशल नेचर को जो है आगे, बिकॉज ही इज़ ड्रिवन बाय सोशल नेचर, तो इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस इसी तरह जस्टिफाई होती है कि वो फिर एसोसिएशंस बनाते हैं और इसी तरह स्टेट जो है इवेंचुअली इट फॉर्म्स। ठीक है, अब जो हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द स्टेट है कि ये कैसे बना था, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है ये समझने के लिए। वी डोंट नीड टू डिबेट कि ह्यूमंस ने किस तरह फॉर्म की सोसाइटीज़ एंड टू अंडरस्टैंड दैट वाई पॉलिटिकल
स्ट्रक्चर्स आर एसेंशियल नाउ। तो हम जो है ना ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं नेचर के अंदर या सोशल इंस्टिंक्ट्स जो हैं ह्यूमन के अंदर, या कन्वेंशन जैसे कि क्रिएशन ऑफ द स्टेट। कन्वेंशन जो है हम इसको ट्रेडिशनल, मतलब कन्वेंशन का आप जब भी मतलब समझते हैं इसका यही मतलब है रेफरिंग टू द कन्वेंशन ट्रेडिशनल वेज, ठीक है। तो हम जो है नेचर किस तरह ह्यूमन की है और कन्वेंशन किस तरह है कि द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, तो हम कहते हैं कि और नेचुरल सोशल टेंडेंसीज जो हैं दे लीड टू द नीड फॉर द सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ये चीज़ें हैं कि वो फेलोशिप होते हैं, वो एसोसिएशन बनाते हैं, इवेंचुअली वो एग्री करते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, हम सारी पावर उसको दे देंगे और वो हम पर रूल करे एंड द डिवाइन लॉ विल प्रिवेल, और किस तरह जो है लिबर्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी जो है वो प्रिवेल करेगी एंड एवरीबडी वुड बी लिविंग हैप्पीली। क्योंकि अगर आप एक स्टेट को देखें तो स्टेट जो है इन चीज़ों को गारंटी करती है कि ठीक है, मतलब हाँ, तुम लोग अपना वो सरेंडर करो, अपना विल, अपना ओपिनियन, तुम लोग एक चीज़ पे एग्री हो जाओ कि ठीक है इस बंदे ने रूल करना है, वेदर इट्स मोनार्क, वेदर इट्स डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एरिस्टोक्रेसी, को किसी भी किस्म का गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर हो या स्टेट की चीज़ें हों, तो मतलब वो स्टेट जो है हमेशा अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर जो है एक तो एक्विनस की फ़िलासफ़ी से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ह्यूमन जो है वो पॉलिटिकल बीइंग भी है और वो सोशल बीइंग भी है। पॉलिटिकल बाय मींस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़, ठीक है, पॉलिटिकल, लीगल, सारे इस तरह, और बाय सोशल वे मीन के ह्यूमन के अंदर सोशल इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है, फेलोशिप का इंस्टिंक्ट है, सोशल एसोसिएशन का इंस्टिंक्ट है, फ्रेंडशिप का इंस्टिंक्ट है। तो मैन बाय नेचर इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है, ये एक्विनस की फ़िलासफ़ी है। एंड मैन इज़ ड्रिवन बाय इट्स इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट को परसू करने के लिए देन दे फॉर्म अ गवर्नमेंट, अ स्टेट, एंड दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन इट्स ऑर्डर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्विनस क्या कहता है लॉ ऑफ नेचर के बारे में, कि किस तरह डिवाइन नेचर प्रिवेल करती है या उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लॉ ऑफ नेचर के बारे में, ठीक है। तो लॉ ऑफ नेचर को हम इस तरह समझेंगे एज अ स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। तो एक्विनस की अगर हम फिलॉसफी का ब्रेक डाउन करें तो हम कहेंगे कि ज़ाहिर है एरिस्टोटल के आइडियाज़ हैं कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एंड अ सोशल एनिमल, ठीक है, जबकि ये सारी बातें जो हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी से, क्रिश्चियन राइटर्स की फ़िलासफ़ी से, जो ये फ़िलासफ़ी बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि ऑगस्टाइन ने बताई थी, ठीक है। तो चैलेंजेस फॉर एक्विनस क्या है कि वो स्टेट ऑफ नेचर और नेचुरल इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी पुराने क्रिश्चियन राइटर्स, थियोलॉजियंस, स्कॉलर्स, इस तरह के लोग थे, तो वो फ़िलासफ़ी को मतलब एंड स्टोइक फ़िलासफ़ी, वो ये कहते थे कि जो नेचुरल स्टेट है वो इक्वालिटी फॉर ह्यूमंस है, जबकि एक्विनस ने जो है हमेशा एक रिकन्सिलिएटिव पाथ शो किया कि ठीक है, मतलब नेचुरल स्टेट होना चाहिए बट देयर शुड बी आल्सो द नीड फॉर गवर्नमेंट एज वेल, मतलब ठीक है एक स्पिरिचुअल होना चाहिए और एक जो है पॉलिटिकल स्फेयर होना चाहिए, और दोनों का जो रिकन्सिलिएटरी पाथवे है वो किस तरह जो है होना चाहिए। मतलब एक्विनस ने इसके साथ स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा इस फिलॉसफी के साथ, ठीक है। तो वो लॉ वर्सेस एटर्नल लॉ की बात करते हैं। तो लॉ तो एक जो जनरली पॉलिटिकल या लीगल लॉ हो गया ना, दूसरा तो एटर्नल लॉ है। एटर्नल लॉ का मतलब जो कि डिवाइन लॉ होता है, मतलब इम्प्रिंटेड बाय द क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब द डिवाइन एंटिटी, ठीक है। लॉ तो हमें पता है ना कि लॉ तो रीज़न से डिराइव होता है, मतलब सिर्फ रूलर्स की जुरिस्डिक्शन नहीं होती, इट कैन कंसिडर द नीड्स ऑफ दोज बीइंग रूल्ड, ठीक है। मतलब या लोग और जो पर्सन होता है हु इज़ रूलिंग, मतलब दो लोग हो गए, प्लस एटर्नल लॉ जो है वो डिवाइन एंटिटी की बात करें। डिवाइन एंटिटी बाय आई मीन के मतलब जो गॉड से डिराइव होती है, ठीक है, गॉड से डिराइव हो गई एटर्नल लॉ। लॉ जो है दूसरा वो हमारे पास आ गया जो पॉलिटिकल स्फेयर का जो लॉ होता है, लीगल, मतलब लीगल वे में मैं आपको बता रही हूँ ये सब। तो नेचुरल लॉ फॉर ह्यूमंस वो तो यही है कि ह्यूमंस का जो रीज़न है, फ्री विल है, ठीक है, वो अप्लाई होता है। नेचुरल लॉ रिक्वायर्स मोर प्रिसीजन, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस जो है वो यूज़ करते हैं अपने रीज़न को, अपने इंटेलेक्ट को, एंड देन दे डिटर्मिन व्हाट्स बेस्ट फॉर देयर सोशल नेचर एंड नीड्स। ज़ाहिर है हर इंसान अपना अच्छा बुरा सोचता है, हर इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, अपने लॉजिक को, अपने रीज़न को, अपने इंटेलेक्ट को, एंड देन दे कम टूवर्ड्स द कंक्लूजन, ठीक है। तो ये जो इंक्लिनेशन है टू अचीव अ गुड लाइफ थ्रू रीज़न
एंड द फ्री विल इज़ नेचुरल लॉ। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक्विनस इसको नेचुरल लॉ डिफाइन करता है। ठीक है, कि इंसान अपना ह्यूमंस जो हैं अपना रीज़न यूज़ करें, इंटेलेक्ट यूज़ करें, लॉजिक यूज़ करें, एंड देन दे कम टुवर्ड्स अ कंक्लूजन के एक गुड लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अ नेचुरल लॉ। मतलब जाहिर है हमें गॉड की तरफ से दिमाग मिला है, सो वी शुड यूज़ इट फॉर अ गुड पर्पस। ठीक है, और इसी तरह डिवाइन लॉ को यूज़ करना चाहिए और अपनी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल सोशल नीड्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमंस ड्रिवन होते हैं, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके तो एक्विनस की फ़िलासफ़ी जो है दैट इज़ एंड हैव ऑलवेज बीन द रिकन्सिलिएटरी पाथ बिटवीन द लॉ द वर्सेस द एटर्नल लॉ, बिटवीन द डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ। इन चीज़ों के साथ उसने हमेशा से एक रिकन्सिलिएटरी पाथवे शो किया है। ठीक है, ये वही कंटिन्यूएशन स्लाइड है लॉ ऑफ नेचर के बारे में और एक्विनस की फ़िलासफ़ी इसी के ऊपर है। लेकिन अगर आप इसका कंट्रास्टिंग व्यू वाली हेडिंग देखें तो इसके अंदर जो ऑगस्टाइन थे और जितने भी अदर इंटर रिलेटेड या सिमिलर फ़िलासफ़ी के लोग थे वो ये समझते थे कि ह्यूमंस जो हैं वो इक्वली क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, एंड गिवन डोमिनियन या डोमिनेशन ओवर एनिमल्स, नॉट जस्ट ईच अदर, लाइक ह्यूमंस आर टोटली इक्वल इन एवरीथिंग। ठीक है, रोमन लॉ का अगर आप पढ़ें तो नेचुरल लॉ जो है वो एम्फेसाइज्ड फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, लेकिन एक्विनस का बैलेंसिंग एक्ट पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि उसने किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, ना उसने कोई कन्वेंशनल आइडियाज़ को रिजेक्ट किया, ना उसने नेचुरल लॉ को रिजेक्ट किया, लेकिन उसने कहा कि ठीक है सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है इंसान अपना रीज़न और इंटेलेक्ट यूज़ करता है, वो अपना लॉजिक यूज़ करता है चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रिकाउंसिल करने के लिए एक्विनस ने जो बैलेंसिंग एक्ट प्रेजेंट किया था और अपनी जो फ़िलासफ़ी प्रेजेंट की थी, थ्योरी प्रेजेंट की थी, उसको हम हमेशा से स्कॉलस्टिसिज्म कहते हैं क्योंकि उसने एक रिकन्सिलिएटरी पाथ शो किया। तो इन शॉर्ट अगर हम पढ़ें तो एक्विनस जो है उसने इन आइडियाज़ को बताया कि ठीक है नेसेसरी स्टेट होता है जो कि क्रिश्चियन या कन्वेंशनल या थियोलॉजियन फ्रेमवर्क था। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली कहता है कि ह्यूमंस जो है नेचुरली फ्री हैं एंड इक्वल हैं, लेकिन एक्विनस जो है वो इस चीज़ को भी इनकलकेट करता है अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर कि ठीक है कंट्रास्टिंग व्यूज़ होते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ जो कि ह्यूमंस डिफरेंटली अप्लाई करते हैं। मतलब इंसान में डिफरेंस कब आता है? हाँ देखो, हम सारे हैं इक्वल, मतलब ठीक है आप लोग देखिए फिज़िकली हम सारे इक्वल है, लेकिन उसके बाद जो है जो इंसान अपना रीज़न इस्तेमाल करता है, जो इंसान अपना इंटेलेक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा डिफरेंट होगी ना। जबकि कोई अपना ब्रेन यूज़ नहीं करता तो वो कैसे इक्वल हो सकता है उस बंदे के जो कि मतलब एक इंसान बहुत अपना रीज़न यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर रीज़न यूज़ कर रहा है तो जाहिर है उसकी इंटरप्रिटेशन टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एवरीथिंग, या उसका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ दैट वुड बी वेरी मच डिफरेंट एंड दैट वुड बी आउट ऑफ द बॉक्स इन कंट्रास्ट या इन कंपैरिजन टू द पर्सन अगर जो अपना रीज़न इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो बस इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे अंडर नेचुरल लॉ। ठीक है, जो कि आप लाइक आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। The third person who we are going to study in this video is about Marsilius। इसके हिस्ट्री में दो नाम बोले गए हैं, कहीं पे मार्सिलियस है और दूसरा नाम जो है इसका मार्सिलियो दी पाडुआ है। ठीक है, एंड दैट वाज इन 14th सेंचुरी। सो नाउ इफ़ वी कंपेयर द टाइम लाइन ऑफ द ऑल थ्री प्रोपोनेंट्स या यू कैन से स्कॉलर्स और फिलोसफर्स, तो ऑगस्टाइन जो था वो तकरीबन 4th सेंचुरी के करीब इस तरह था। देन एक्विनस की जो फ़िलासफ़ी थी वो बहुत टाइम बाद आई एंड देन द मार्सिलियस वाज इन 14th सेंचुरी। तो आप अगर इसकी फ़िलासफ़ी को पढ़ें तो वो उसकी फ़िलासफ़ी में हमें फोकस ऑन द स्टेट मिलता है। कहता है कि मार्सिलियस की जितनी भी फ़िलासफ़ी थी इट वाज एडवोकेटिंग फॉर द स्टेट पावर। ठीक है, चर्च में कहा कि रिफॉर्म आना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए चर्च की, और जो प्रीस्ट का रोल है वो डिमोट किया जाए क्योंकि चर्च की आज सच कोई अथॉरिटी नहीं होती। इसके मुताबिक, मार्सिलियस के मुताबिक, उसने पापल अथॉरिटी को चैलेंज किया। उसकी एक बहुत मेजर काम था, ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर दैट एंड दैट इज़ डिफेंसर पेसिस। ठीक है, इसकी किताब में इसने कहा कि स्टेट जो है वो कम्प्लीटली सेक्युलर होना चाहिए और जो प्रैक्टिसेस जो इंस्पायर्ड है बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ द इटालियन सिटी स्टेट्स। इटली के जो 5-6 सिटी स्टेट्स थे उनमें जिस तरह का काम चल रहा था
बिल्कुल उसी से इंस्पायर हो के मार्सिलियस ने कहा कि चैलेंजिंग ऑफ द पापल अथॉरिटी, ठीक है। इसका जो जितना भी फिलोसॉफिकल गोल था वो था टू डिसमेंटल द चर्च एंड पापल पावर। तो वही सारी बातें हैं कि लिमिटिंग चर्च कंट्रोल, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया चर्च के इन्फ्लुएंस को ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट जो है बिल्कुल एक सिक्यूलर एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है। और कहा कि एक ज़्यादा जो है रेडिकल एडवोकेट होता है फॉर द स्टेट पावर देन एनी अदर मिडीवल राइटर। मतलब मार्सिलियस की राइटिंग या इसके बारे में आप लोग को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जो मेजर लोग हैं वो तो एक्विनस और ऑगस्टाइन और बाकी जो जितने भी हैं मतलब स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, थियोलॉजियंस हैं, मतलब इनके बीच में डिवीजन थी। देयर वाज अ बिग डिमार्केशन। बस जो क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड थे, जो चर्च अथॉरिटी को एडवोकेट करते थे, और वो बाकी वो लोग थे, वो प्रोपोनेंट्स थे जो स्टेट की पावर को एडवोकेट करते थे। लेकिन मार्सिलियस जो है ये इसके बारे में आप लोग को बहुत कम मिलेगा, ठीक है। अब इसकी दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं, बिल्डिंग ऑन एरिस्टोटल। तो जो एरिस्टोटल के जितने भी व्यूज़ थे तो मार्सिलियस ने जो है इसको देखा। एरिस्टोटल का जो काम था पॉलिटिक्स, एड्रेसिंग द इशू ऑफ पापल क्लेम्स टू सुप्रीम पावर विच एरिस्टोटल हैड नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। तो इसने आगे जाके इसने सप्लीमेंट किया एरिस्टोटल के काम को, ठीक है। एंड वेरी मच वेरी एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मार्सिलियस जो है ही वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन एज वेल। जो इनकी फेमस किताब थी द डिफेंसर पैसेस, उसके जो है मेन जो टू पार्ट्स जो फर्स्ट हैं वो डिवाइडेड इन द टू मेन सेक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल्स के ऊपर है, और जो सेकंड पार्ट है या सेक्शन है दैट फोकसेस ऑन द चर्च प्रीस्ट एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट। थर्ड पार्ट जो बुक का है वो एक स्मॉलर कंक्लूडिंग सेक्शन है जो कि मार्सिलियस की फ़िलॉसफी को डिस्क्राइब करता है। तो वो स्टेट को कैसे कहते हैं कि एज एन ऑर्गेनिज्म। अब एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी के ऊपर अगर आप दोबारा जाएं तो वो स्टेट को कहता है कि ये एक डायनामिक चीज़ है, ठीक है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ग्रोज एंड इवेंचुअली जो है फिर गवर्नमेंट, स्टेट, टेरिटरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना। उसने एरिस्टोटल ने स्टेप्स बताए थे ना कि पहले एक ह्यूमन होते हैं, वो एसोसिएशन बनाते हैं, फिर क्लैंस बनती हैं, स्टेट बनता है, टेरिटरी होती है, फिर ये इस तरह क्लैंस बनते हैं और इस तरह स्टेट बनता है। इवेंचुअली द हाईएस्ट फॉर्म इज़ द स्टेट, ह्यूमन एसोसिएशन इज़ द स्टेट, ठीक है। तो इस तरह वो ये मार्सिलियस भी कहते हैं कि ठीक है, मतलब जो स्टेट है वो बिल्कुल एक डायनामिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रोथ करता रहता है, और हर स्टेट के हर एक पार्ट का बहुत ज़्यादा वाइटल रोल है, ठीक है। हार्मनी जो है वो पीस को इंश्योर करती है, जबकि अगर कोई डिसफंक्शन आ जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट बनाता है, ठीक है। परफेक्ट कम्युनिटी की बात की है मार्सिलियस ने अपनी फ़िलॉसफी में, और वो सिटी स्टेट को कहते हैं कि ये एक परफेक्ट कम्युनिटी होती है जो कि ह्यूमंस को गुड लाइफ प्रोवाइड करती है, बोथ in the present and afterlife. Now if you talk about reason and religion as well, तो इसके दो मीनिंग्स हैं। सो द टू मीनिंग्स ऑफ गुड लाइफ क्या है कि मतलब एक मीनिंग तो ये है कि बोथ प्रेजेंट और जो आफ्टर लाइफ है वो हो गया, ठीक है। मतलब रीज़न जो है हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, रीज़न गाइड्स द लाइफ, इट गाइड्स एवरीथिंग। लेकिन जो रेवलेशन है जो कि रिलीजन है वो हमें फेथ गाइड करता है फॉर द नेक्स्ट। तो अगर प्रेजेंट में हम देखें तो हमें रीज़न काम आएगा, और रिलीजन जो है हमें वो आफ्टर लाइफ जो है फेथ जो है हमारा गाइड करेगा फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो रीज़न एंड ऑर्डर की बात करें तो फिलॉसफी और रीज़न जो है वो डिक्टेट करते हैं ज़ाहिर है सिविल गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल एसोसिएशन को, टू मेंटेन पीस एंड टू प्रिवेल ऑर्डर, ठीक है। रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर बोथ लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। इस स्लाइड को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट लिमिटिंग क्लर्जीज पावर। क्लर्जी मतलब इट इज़ रेफरिंग टू द चर्च, ठीक है। नो कोर्सिव पावर। मार्सिलियस जो थे इसने स्ट्रिप की क्लर्जी की पावर को, क्योंकि मेडिवल टाइम्स में जो है बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट पावर थी चर्च की, ठीक है। लाइक एनी अदर क्लास दे वर सब्जेक्टेड टू, ठीक है। तो मार्सिलियस कहते हैं कि जो क्लर्जी की पावर है दे आर सब्जेक्टेड टू द स्टेट लॉज, ठीक है, मतलब उसके अंडर है। देन टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल ऑफेंसेस, तो मार्सिलियस ने कहा कि ह्यूमन लॉज जो है वो दे कैन नॉट बी जज्ड बाय स्पिरिचुअल ऑफेंसेस, सिर्फ गॉड जो है दे कैन पनिश देम इन द आफ्टर लाइफ, ठीक है। तो चर्च का जो है इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस एंड लिमिटिंग क्लर्जीज फंक्शन। क्लर्जी की पावर को भी ऑफेंड को चैलेंज किया, और क्लर्जी के फंक्शंस को भी चैलेंज किया, और कहा कि क्लर्जी कुड परफॉर्म रिलीजियस राइट्स, इंस्ट्रक्ट्स एंड एडवाइस बट दे कुड नॉट एनफोर्स एनीथिंग, ठीक है। तो ये
जो है मार्सिलियस की फ़िलासफ़ी थी विद रेफरेंस टू रिलीजन, विद रेफरेंस टू क्रिश्चियन रिलीजन एंड चर्च एंड क्लर्जीज पावर एंड द पापल पावर, इस तरह की चीज़ों के साथ ये थी मार्सिलियस की फ़िलासफ़ी। क्योंकि मार्सिलियस ने जो है ही एडवोकेटेड फॉर द स्टेट, क्योंकि स्टेट जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है। तो और क्योंकि मार्सिलियस की फ़िलासफ़ी से हमने ये भी पढ़ा कि उसने कहा कि जो चर्च है या क्लर्जी है दैट इज़ सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, या आप इसको ऐसे समझ लें जैसे कि स्टेट की ब्रांच है चर्च और रिलीजियस चीज़ें, ठीक है। तो मार्सिलियस जो है वो तो एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी से एग्री करता है कि पर्पस ऑफ द स्टेट या पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो रैशनल फुलफिलमेंट है कि ह्यूमंस के को प्रोवाइड करे सफिशिएंट लाइफ नीड्स, सब चीज़ों को फुलफ़िल करे, गारंटी करे। लेकिन वो एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी को थोड़ा सा जो है एक्सीड करते हैं और वो ये कहते हैं कि रिपब्लिकनिज़म जो है ना वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि रिपब्लिकनिज़म में क्या होता है कि इट व्यूज़ पीपल एज द ओनली लेजिटिमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिसका से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप मार्सिलियस का टाइम पीरियड देखें दैट इज़ 14th सेंचुरी, तो इससे हम साबित कर सकते हैं कि लाइक व्हेन द टाइम वाज पासिंग, और इस तरह जो मतलब कितनी मॉडर्नाइजेशन आती गई साथ साथ के, लाइक दे वर व्यूइंग पीपल एज द ओनली सोर्स ऑफ द लेजिटिमेट अथॉरिटी, और कि सारी पावर जो है वो इट रिजाइड्स विद द पीपल, ठीक है। तो ये सारी बात एंड नॉट विद अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि चर्च या स्टेट, मतलब सारी पावर जो है लोगों के साथ रिजाइड होती है। सो दिस इज़ हाउ यू नो थिंग्स वर चेंजिंग एंड चीज़ों में मॉडिफिकेशन आती गई और चीज़ें ऑल्टर होती गई, थॉट्स ऑल्टर होते गए, रीज़न का आना लग गया था, इंटेलेक्ट का आना लग गया था। 14th सेंचुरी के बाद देन हॉब्स केम, लॉक केम, रूसो केम, मैकियावेली सबसे पहले आया था, देन हॉब्स, लॉक, रूसो एंड अदर फिलोसफर्स जैसे बेंथम मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सारे जो हैं फिर आते गए, थॉमस हिल ग्रीन। तो मार्सिलियस की फ़िलासफ़ी से हमें ये पता चला कि ही वॉज एडवोकेटिंग फॉर द स्टेट, और स्टेट के अंदर भी फिर उसने कहा कि रिपब्लिकनिज़म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ व्यूइंग पीपल एज द ओनली लेजिटिमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। तो लोगों के अंदर सारी पावर जो है रिजाइड होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट मार्सिलियस। ये मैंने आप लोगों के लिए एक बना दिया कि मैंने कहा स्टिल अगर आप लोग कंफ्यूज हैं या आप लोग को पिछली स्लाइड से समझ नहीं आई, तो अगर फ़िलासफ़र्स का मैंने कंपैरिजन कर दिया तो व्यूज़ ऑन डोमिनेंस जो ऑगस्टाइन है वो चर्च को एडवोकेट करते हैं, जबकि एक्विनस हैं वो स्टेट की बात करते हैं। और इनके की आइडियाज़ की अगर बात करें, सो टॉकिंग अबाउट द ऑगस्टाइन, उनका प्राइमरी एम्फेसिस जो था वो स्पिरिचुअल रियल्म पे था, ठीक है। सो डायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द चर्च। वो स्टेट को ऐसे देखते थे जैसे कि नेसेसरी है बट इट इज़ अ फ्लॉड इंस्टीट्यूशन, और he advocated for church guidance over the state actions, ठीक है, कि अल्टीमेट पावर रिजाइड्स विद द चर्च। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्विनस एंड हिज की आइडियाज़, वो स्टेट को एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन देखते हैं, वही एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी है। वो कहते हैं कि एसेंशियल है फॉर द कॉमन गुड एंड ही एम्फेसाइजेस द स्टेट्स रोल इन प्रमोटिंग वर्चू एंड जस्टिस। लेकिन एक्विनस की फ़िलासफ़ी को हम स्कॉलस्टिसिज्म भी कहते हैं, कि उन्होंने कहा ठीक है, एक हमें जो है हमारे आगे 2 स्फीयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, एक पॉलिटिकल होता है, एक रिलीजियस होता है। तो हम जो है पॉलिटिकल मतलब हम रीज़न को भी फेथ को भी लेकर चलते हैं, मतलब रिलीजन को भी लेके चलते हैं, और हम जो है पॉलिटिकल उसमें हम अपना लॉजिक और रीज़न इस्तेमाल करते हैं। तो इंटेलेक्ट के थ्रू फिर हम चीज़ों को फर्दर अपने लिए बेहतर बना सकते हैं टू गेट द गुडनेस इन लाइफ, ठीक है। गुड लाइफ या गुड मीनिंग ऑफ लाइफ हमें इसी तरह मिलेगा कि हम रिलीजन का भी इस्तेमाल करें और हम पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर हम अपने रीज़न और इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें। सो दिस वाज जस्ट अ समरी, आई जस्ट मेड दिस टेबल। और हाँ, आई जस्ट वांट टू से हेयर कि मे बी इस वीडियो के दौरान मेरी वॉइस जो है अप एंड डाउन हुई होगी एंड पिच जो है वो चेंज हुई होगी, बिकॉज आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो इन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, because I was very much busy through the past several days, you can say several months. So I thought to make a video, क्योंकि आप लोग जो मेरी पुरानी वीडियो है on medieval philosophy वो बहुत ज़्यादा आप लोग उस पर
कमेंट करते हैं उस पर व्यूज़ आते हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वेरी डिटेल्ड वीडियो फॉर यू पीपल कि आप लोग को एक थर्ड फिलोसफर की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंड दैट इज़ मार्सिलियस, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. जो पुरानी मिडिवल फिलोसफी की थी वीडियो थी वो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए बनाई थी कि सो just for you to have an understanding of Aquinas and Augustine. But this was a very detailed video, and it also included several points of the Augustine and Aquinas, including Marsilius as well. Thank you so very much for watching. Like and subscribe to my channel and hit the like button so that you will be updated for the upcoming videos.